welcome you from the Friends of Woodward, who is our parent support group for the fine arts programs here, and also our multicultural awareness parent support group. We hope you have a wonderful evening. We think, I'm pretty certain that I'm correct in this, this is the first non-English speaking production in this theater, and of course the first for the Maris School, which was founded in 1901. We also tonight will enjoy the food from the Haveli restaurant after the performance, so that is a distant, well, it's in another building, but we will direct you there, and there will be restrooms there for you to take a short break before we go to the reception. And Dr. Berry with the Georgia Human Relations Commission also co-sponsors. Thank you, Dr. Monteith. Good evening. It is a pleasure to welcome you on behalf of the Georgia Human Relations Commission. The Commission has been involved over the last 7 years in helping to create an intercultural climate here in Georgia. And this evening is one such activity. It involves the theater and music and food and design. We hope that it will be a wonderful evening for you. Let me tell you that the performers are all busy working people, but they have given a good deal of time putting together this production. And for their families, we want to thank their families for being so indulgent, because they spent many nights away from home. We hope you'll enjoy. Please do listen as you would an opera. You've looked at the libretto, you've looked at the notes. You may not understand the words in Hindi, but the emotions will come through. Enjoy. Thank you. Good evening. My name is Sasin Desai. Tonight we are presenting before you Badal Sarkar's Pagla Ghoda. It was written originally in Bengali language and translated into Hindi. We are going to perform it in the Hindi language. There are 2 acts to the play. We'll have a very brief intermission, around 10 minutes. At the end of the play, after the end of the play, we have a reception in the cafeteria, and we hope that all of you would join at that time also. There is also an art exhibit in the lobby. Please enjoy that too. Pagla Ghoda is a story of the writer of the playwright has insisted it's a love story. It's a story of a girl that 4 men come to cremate in a cemetery. The whole action takes place in a cemetery. While the girl is being cremated, the 4 men who have come, who are no relations to the girl, they come and talk to each other and start unraveling their own past. And in the past of each of the 4 men is a female to whom that man has done injustice. So they start imagining their own past coming and unraveling in front of them again. So they relive through their past. And the girl comes out of sort of the fire and becomes that person. And instead of telling you the entire story, I would let the actors perform it before you. We offer to you Pagla Ghoda. Thank you. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा
यमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता। Declare. चिड़ी, अरे वाह, डबल की बाजी है, याद है ना? 18 बोले हो शशिदा। ये रहा। बस रंग खलास। किस बूती पे चिड़ी रंग लगाया था रे? 1 2 3 6 8 10 12 13 2 काला खोले शशि बाबू। 5 काला हो गया साधु बाबू। बस एक और खुल जाए तो इन लोगों की काली झंडी तैयार। अरे एक बार जरा देख आया जाता। मैं जाता हूँ। नहीं, तुम ही बार बार क्यों जाओ? इस बार मैं जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, आप बैठिए, मैं जाता हूँ। अरे अभी उम्र कम है, हम लोगों से कितना छोटा है। 2 बार चला ही गया तो क्या हुआ, हम भी जब इसकी उम्र के थे ना। कार्तिक बाबू तो ऐसी बात कर रहे हैं, न जाने उनकी कितनी उम्र हो गई हो। कितने वसन पार किए आपने, सुनो तो जरा। 49। वसन पार किए 49 और घुमान इतना। मैं तो 2 साल पहले 49 पार कर चुका हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कसम से सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो मानता था कि कार्तिक बाबू आपसे कम 10 साल तो बड़े होंगे ही। अरे नहीं शशि बाबू, रात दिन खूलियों से माथा मारे बीत जाता है। सर्दी गर्मी रात दिन कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। बुढ़ा होने का समय कहाँ मिला है। वाह वाह साधु बाबू, क्या बात कही है। लोगों को जैसे मरने की फुर्सत नहीं मिलती, वैसे ही साधु बाबू को बुढ़े होने की फुर्सत नहीं मिली। सच साधु बाबू, आपको देखकर मन करता है कि पोस्ट मास्टरी छोड़कर ठेकेदारी शुरू कर दूं। अरे शशि बाबू, ऐसी सुख की जिंदगी छोड़कर आपको यह झकमारी की क्या पड़ी है। अरे झक मारी तो हर कहीं है। अब देखिए ना, हम लोग यहीं पड़े सड़ रहे हैं और आप इस बीच न जाने कहाँ कहाँ घूम चुके, क्या क्या देख आए। भाई आप लोगों की लाइफ इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग लाइफ का शौक नहीं है। मैं जैसे हूँ वैसे ही सुखी हूँ। जी हाँ, बड़े सुखी हैं। दवा का ठीक माफ करते करते आंखों के 12 बज गए हैं और दिन भर स्टूल पर कमरे के कोने में बैठे बैठे सारे जोड़ों को कचिया ने जकड़ लिया है। अरे भाई, कमरे के कोने में बैठे बैठे ही इस कार्तिक कंपाउंडर ने बहुत दुनिया देखी है। हाँ, आप ही लोग तो यहाँ के सिंह द्वार हैं। हाँ, और ऐसा सिंह द्वार जहाँ आप सब आते हैं और हंसी खुशी दक्षिणा भी दे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कार्तिक बाबू। पावन तोले पाप रद्दी सही। तो मैं पिछली बार आपके सेवादार पर कब आया था याद नहीं पड़ता। ऐसा मजबूत शरीर पाया है कि बीमारी भीतर घुस ही नहीं पाती। हाँ, क्या कहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, कौन जाने। ऐसा कहते नहीं, ऐसा करते नहीं, ऐसा सुनते नहीं, ऐसा देखते नहीं। ये सुनते सुनते कान पक गए कार्तिक बाबू। जब से होश संभाला है यही सुनता आ रहा हूँ। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने न किया हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो देखी जानी ना हो। फिर भी मजे में तो हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। लीजिए, पीने की बात से याद आई, सातू बाबू वो नहीं निकालेंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
अरे हिमाद्री के सामने? हिमाद्री तो जैसे मिट्टी का माधो है। नहीं, पर अभी बच्चा है। बच्चा 30 के आसपास पहुंचा होगा और आप उसे बच्चा बच्चा कह रहे हैं। अरे 4 गिलासों का क्या कीजिएगा? क्या सोच रखा है कि हिमाद्री भी पिएगा? एक भले आदमी को बिगाड़े बिना आप लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। उसे बिगाड़ने की किसे गरज पड़ी है बाबा? उससे तो अपना ही घाटा होगा ना, इसमें से हिस्सा बढ़ जाएगा। हिस्सा बढ़ने की चिंता मत कीजिए कार्तिक बाबू। ये क्या, आप एक बोतल और लाए हैं अपनी गांठ से पैसा खर्च करके? हाँ, अरे आज ही ने तो कहा था पैसा तिजोरी में रखा ही नहीं जा सकता। सच पूछिए तो मेरी समझ में नहीं आता मलिक बाबू ने आखिर बोतल दी क्यों? आप अभी यहाँ नए नए आए हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, आप कैसे कुछ जानेंगे साधु बाबू? मतलब कोई बात है क्या? हाँ, सो क्यों नहीं, कुछ है साधु बाबू, कुछ है। मलिक बाबू का अपना स्वार्थ था। स्वार्थ? आप उस लड़की को जानते थे? नहीं तो। लड़की कौन थी, उसका क्या किस्सा है, ये सब भी न जानते होंगे? मैं कैसे जानूंगा? तो जब आपको किसी से कुछ मतलब ही नहीं था तो फिर इतनी रात को निकले क्यों? वाह, आता न कैसे? खबर मिली तो आप सब लोग आ रहे थे। अरे साहब, मुझे तो विलायती का नशा खींच लाया। हाँ, सो भी ठीक ही है। इतनी रात को यहाँ आने को राजी ही कौन होता? हाँ, सो भी इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? माने ये लड़की कौन है? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम लोग कोई नहीं जानते? तुम लोग कोई नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा किस्सा क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये लड़की का किस्सा? लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। अरे मुझे तो लड़की का कोई भी दोष नहीं लगता। लड़की का एकमात्र दोष ये था कि वो लड़की थी। हाँ, सो आप ठीक कहते हैं। आप लोग तो इस किस्से को और भी पेचीदा बनाते जा रहे हैं। लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। किसकी जिंदगी में रहस्य नहीं और किस्सा, किसकी जिंदगी में किस्सा नहीं। तुम लोग की जिंदगी में कोई किस्सा नहीं, कोई रहस्य नहीं। सब कह डालो ना, कहकर जी हल्का कर डालो। देखोगे कि तुम सबका किस्सा मिलकर एक रूप हो जाए, एक रूप। फिर किस्सा सो क्यों नहीं है? कोई बात हुए बिना मलिक बाबू यूं ही विलायती बोतल दे देते। वैसे शशि बाबू बोतल के लिए नहीं आए, ये बात सही है, और हिमाद्री की तो बात ही छोड़िए। तो देखिए कार्तिक बाबू, मेरा भी कुछ स्वार्थ था तभी आया हूँ, यूं ही नहीं। मेरे पास न तो हिमाद्री की तरह आदर्श है और न साधु बाबू की तरह। वाह, मैं तो आप लोगों के कंपनी के खातिर आया, ये स्वार्थ नहीं? हाँ, स्वार्थ तो है, पर बड़े ऊंचे दर्जे का। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के बड़े अफसरों से मलिक बाबू की काफी रफ जफ्त है। आप लोग तो इस किस्से को और भी पेचीदा बनाते जा रहे हैं। लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। अरे साधु बाबू, क्या आप पर भी हिमाद्री की तरह आदर्श का भूत सवार हो रहा है? अरे सब कुछ ठीक है हिमाद्री? हाँ, अब कुछ देर आराम से निश्चिंत हुआ जा सकता अरे है। आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या साधु बाबू, उसे नहीं खोलिएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिमाद्री बाबू, सुना है आपको यह सब कुछ चलता नहीं? मेरी चिंता मत कीजिए। आप लोग। अरे मैं इतनी नहीं दूंगा। अरे इतनी कितनी होती है, पीने के पहले ही नाना करने लग गए। सोडा तो है नहीं, किसी को पानी चलेगा? जी नहीं, पानी मिलाकर मैं इसे चौपट नहीं करना चाहता। शशि बाबू आप? नहीं नहीं, नींद ही ठीक रहेगी। वाह, ये अच्छी बात रही। सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे निकले। हिमाद्री, जरा सा चक्कर देखोगे? नहीं नहीं,
मुझे ये सब नहीं चलता, आप लोग लीजिए। अरे हम लोग तो लेंगे ही, एक दिन तुम भी जरा सा चक्कर देखते। नहीं, मुझे माफ करिए। डरो मत, तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं जान पाएंगे और हेडमास्टर साहब को तो दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। नहीं, वह बात नहीं है। अरे तो क्या बात है, प्रिंसिपल का सवाल है। प्रिंसिपल भी नहीं शशिदा, असल में मुश्किल क्या है कि स्कूल टीचर को देख के आप लोग उसे सिद्धांतों का पिटारा मार बैठते हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। तो जरा एक बार चख लेने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं साधु बाबू, हर्ज नहीं, डर है डर। अरे स्कूल टीचर का कोई सिद्धांत ना भी हो तो भी उसे उसका खोल तोड़ना पड़ता है, वरना नौकरी चली जाए। तो यहाँ इस एकांत में एक दो घूंट ले लेने में क्या डर है? यह कौन कह सकता है कि इस एकांत में या एक तो घूंट में ही बात खत्म हो जाएगी कार्तिक दा। ये आप गलत सोच रहे हैं माधवी बाबू। एक बार चख लेने से कुछ आदत नहीं पड़ जाती, अगर मन मजबूत हो तो। देखो हिमाद्री, तुम्हारे मुंह पर कहना तो नहीं चाह रहा था, पर सारा गांव, बड़े बूढ़े, लड़के बच्चे, मास्टर सभी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। कैसी तारीफ कार्तिक दा? मैं गणित अच्छी पढ़ाता हूँ, यही ना? अरे नहीं, इससे बहुत ज्यादा। कहते हैं बहुत मजबूत मन है तुम्हारा। लोग किसी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भूल से जिसे वे मन की मजबूती समझ बैठते हैं, वह क्या है जानते हैं? हट। एक हटी आदमी का जबरदस्त हट। उसे जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। ये हुई ना बात, ये तुम्हारा रहस्य, तुम्हारा किस्सा। एक एक आदमी का एक एक किस्सा, एक एक रहस्य। बोलो कौन किसके बारे में जानता है? बोलो कौन किसके बारे में जानता है? बोलो कौन किसके बारे में जानता है? कौन किसके बारे में जानता है? लीजिए, आप लोग शुरू कीजिए। Cheers. जय भोलेनाथ। आहा, क्या बात है विलायती की, जी जुड़ा गया। अरे जुड़ा गया नहीं, जल गया कहिए। एक ही बात है भाई, एक ही बात है। सच? जी जलना और जी जुड़ाना एक ही बात है? तो धू धू करती वो आग जला रही है या जुड़ा रही? जला रही या जुड़ा रही? और कितनी देर लगेगी हिमाद्री? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। आग खूब तेज जल रही है। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है, जलने में देर नहीं लगेगी। क्या हुआ सातू बाबू, आप कुत्ते की रुलाई सुनकर ऐसा चौंक क्यों पड़े? ये कुत्ते की चीख उससे कभी बर्दाश्त नहीं होती। आप आओ तो हिमाद्री, अभी सब काला बंद करके लाल करता हूं। बोलिए। 16 पास। पास। 17 मेरे 18 पास। पेयर 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 पेयर, साहब बीवी पेयर, साहब बीवी पेयर। पेयर माने जोड़ा। वो क्या कहानी थी ना, मौसी सुनाया करती थी, याद ही आया, याद आ गया। आम का पत्ता धोला धोला, माला ताको धोला धोला, तो लास्ता कलियो बीवी आता पतला धोला। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी, आता है पगला घोड़ा। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी, आता है पगला घोड़ा। घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है, घोड़े को बंदूक से मार दिया गया है, पगला घोड़ा। Thank you.
16 चले काली झंडी, काली झंडी। क्लास बढ़ाइए कार्तिक बाबू। आप भी शशि बाबू। साहब अब और ताश खेलने का मन नहीं कर रहा है। क्यों साहब, हार गए तो रोने लगे? नहीं, हारने की बात नहीं है। क्या जीतने पर हर समय अच्छा ही लगता है? क्यों, जीतने पर अच्छा नहीं लगता? नहीं, हर जीत अच्छी लगने वाली नहीं भी हो सकती है। जैसे? जैसे अरे आपने तो मुश्किल में डाल दिया। इतना नाक तोड़कर बात थोड़ी ही कही थी। अच्छा मान लीजिए किसी बात पर बीवी से आपकी खूब बहस हो गई। बीवी से और मेरी बात? अरे शशि बाबू, आपको कोई और बीवी वाला नहीं मिला? क्यों, क्या आपने शादी नहीं की? वाह, शादी करके जो लोग पा जाते हैं और मैं बिना शादी के पा जाऊं तो शादी क्यों करूं? सच? क्या ऐसा हो सकता है घर गृहस्थी के बगैर? तो आपका मतलब घर गृहस्थी, बीवी और उसके हाथ की बनाई स्वादिष्ट रसोई से था? ऐसा कुछ नहीं है माधवी बाबू, कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, असल चीज कुछ और ही है। ये असल चीज आपको कहाँ मिलती है? अरे कार्तिक बाबू, ठेकेदारी का काम, कूली मजूर और बहुत सारी जगह है। थोड़ी सी और दीजिए तुम। हाँ हाँ लीजिए, शौक से लीजिए। कार्तिक बाबू आप? तो मैं कभी पास नहीं कर दूंगा। क्या बात है शशि बाबू, आप इस तरह बेचैन क्यों हो रहे हैं? नहीं, बैठे बैठे पैर चकड़ गया, दर्द करने लगा। पैर नहीं, सिर दर्द करेगा नहीं। भीतर न जाने कितना कुछ भरा रहता है। लोग उसे खाली तो करते नहीं, सब अंदर ही अंदर संजो कर रखते हो और उमड़ घुमड़ कर तुम्हें बेचैन किए जा रहा है, तुम्हें मत रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे, तुम समझ नहीं पा रहे। मालती न जाने कब की मरकर भूत हो गई, ठीक मेरी तरह जल कर राख हो गई, धू करती उस आग में, ठीक मेरी तरह। मालती, तुम यहाँ क्यों? तुम मुझे भगा दोगे? तुमने वचन दिया था कि नहीं, कोई बात नहीं हुई थी, कोई बात नहीं हुई। सब कुछ तुम्हारा खाओ था शशि, तुम्हारा। हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? अच्छा बुरा, उचित अनुचित, मंगल अमंगल, तुमने सब ठीक कर रखा है। तुम खुद भी जानती हो मालती। खुद क्या जानती हो शशि, खुद क्या जानती हो? नहीं जानती। इस समय इस तरह मेरे पास आने का मतलब? चले जाने को कह रहे। इसके सिवा और रास्ता उपाय क्या है? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। पहले भी जिस रास्ते पर तुमने जाने को कहा शशि, उसी रास्ते पर। जीत हमेशा तुम्हारी हुई है शशि, हमने। जीत? क्यों हमेशा तुम्हें नहीं जीते? कैसी जीत? किसकी जीत? तुम्हारी और किसकी? अपने आप से जब तुमने लड़ाई की ना, तुम ही जीते। तुम में शक्ति थी कि तुम जीत गए। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में नहीं पड़े। हार क्यों होती है शशि, तुम्हें कभी नहीं जाना। मैं क्या हार जीत की बात सोचकर? नहीं, सो क्यों सोचोगे? तुम सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालती, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं जानती थी अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई थी। अरे ये क्या कर रही है मालती? पैर तो मेरा भी जकड़ गया। जय भोलेनाथ। चीयर्स। सातू बाबू जानते हैं, ये काली का प्रसाद है, शमशान काली का प्रसाद।
शशि बाबू क्या सचमुच और नहीं खेलेगा? अरे आप कहिएगा तो खेल ही लूंगा। नहीं, मन न हो तो हटाइए, इससे अच्छा कुछ बातचीत ही की जाए। हाँ, यही अच्छा है। कुछ बातचीत हो, कुछ किस्सा कहानी हो। क्या हुआ, शुरू करो ना। कार्तिक बाबू शुरू कीजिए। मैं? आप ही ने कहा था ना, सिर द्वार पर बैठे बैठे आप सारी दुनिया की खबर रखते हैं। उसी में से कोई एक मजेदार किस्सा सुनाइए। मजेदार किस्सा? और शमशान में? शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जम सकता है। उनकी कहानी सुनने के लिए कमरे के भीतर गरम गरम गुलगुले बिस्तर की जरूरत पड़ती है। वैसे मेरा मतलब लिहाज की गर्मी से न था। आपने एकदम ठीक बात कही है साधु बाबू। शमशान में मजेदार किस्सा ही जम सकता है, मानो प्रेम कहानी। प्रेम? क्यों हिमाद्री, इस बुड्ढे घुसट के मुंह से प्रेम कहानी सुनकर हंसी आ रही है ना? मैं उस कारण से नहीं आता। तो फिर? अरे शमशान में ही प्रेम कहानी जमती है। बात समझ में नहीं आई। शमशान में प्रेम कहानी जम सकती है, यह तो समझ में आ गया। प्रेम माने शमशान, शमशान माने प्रेम, यह बात कुछ जमी नहीं। इन दोनों में मेल कहाँ? अरे है सातू बाबू, खासकर एक माने में। वो क्या? अरे दोनों में आग होती है और आग दोनों ही को जलाकर राख कर देती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। प्रेम क्या जलाकर राख करता है? कभी नहीं, कभी नहीं। I see, प्रेम की आग। ये आप जलाती है या फिर चुराती है? चुराती है। आपके कहने का मतलब कि जले बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहता? मेरे आपके लिए हो सकता है, पर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। हाँ, समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों को जले बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहता। मैं सबकी बात नहीं कहता। कोई एक खास लड़की की बात कह रहे हैं, उसी का किस्सा तो हम सुनना चाहते हैं। है तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? मैं तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती। बतला सकते हो क्यों? नहीं जानती। नहीं साधु बाबू, मेरा कोई किस्सा नहीं। सच कोई भी नहीं? अब इसी लड़की को लीजिए। देखिए ना, एक बार बात शुरू हुई थी फिर वहीं रह गई। इस लड़की का क्या किस्सा? आप कुछ कह रहे थे ना? ये किस्सा भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये बात भी सुनाना, ये बात भी सुना, ये बात। ये लड़की अभी तो चिता में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या अर्थ था आप बता सकते हैं? क्यों? क्या ये लड़की आप लोगों के प्रेम के आग में नहीं जल रही? अरे प्रेम की आग में और ये लड़की? प्रेम से यदि आपका मतलब। कार्तिक दा, क्या हुआ? ये गंदी बातें, गंदा कारवार हिमाद्री को अच्छा नहीं लगता। नहीं, कारबार गंदा होने का सवाल नहीं, आपके कहने का। ओहो, दोष भाषा का है तो ठीक है, तुम ही कहो अपनी पवित्र भाषा में। पवित्र भाषा? पवित्र? शशिदा, मॉरलिस्ट? मॉरलिस्ट कौन है? अरे कौन नहीं है? तुम, मैं, कार्तिक बाबू। ओह, ये झगड़ा क्या किस बात का? कैसे मजे में कहानी चल रही थी। अरे सातू बाबू, किस्सा कुछ खास नहीं है, मैं थोड़े में बता देता हूँ। इस लड़की के जन्मते ही इसकी माँ मर गई और पूरे खानदान में बचा इसका बूढ़ा भाव। बूढ़ा क्या, एकदम खनखड़ कहिए। फिर भी उसने 50 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की लड़की से ब्याह किया। फिर गर्मा गर्मी होने लगी। इस तरह का किस्सा खत्म हो पाएगा? अच्छा हिमाद्री, तुम ही बोलो, जैसे मर्जी है वैसे। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, शशिदा आप सुनाइए। अरे कहा ना सातू बाबू, ये किस्सा सचमुच कुछ खास नहीं है। इस किस्से को लेकर कोई छोटी मोटी कहानी भी नहीं लिखेगा। उपन्यास की तो बात ही छोड़िए। अरे न लिखेगा तो न सही, हमें उससे क्या? हम यहाँ कोई साहित्य गोष्ठी करने तो आए नहीं है कि उपन्यास लिखने जैसी ही बातें करें। हाँ और क्या, हम तो यहाँ शमशान मित्र मंडल के अधिवेशन के लिए जुटे हैं। क्यों? हाँ शुरू कीजिए। अरे कहा ना, इस लड़की का बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था और बाप को भी लकवा मार गया था, सो हिलने डुलने लायक तक न था।
जाओ देख हो जाएगी। नहीं, मैं जा रहा हूँ। साधु बाबू, आप सुचिता की कहानी सुनिए। नहीं, लौट के सुनूंगा। देखो जरा कुत्ते को भी खदेड़ा जा सके तो। आओ हिमाद्री, तब तक ताश खेलते हैं। अरे कार्तिक का, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भी कोई बात हुई? बाप रे बाप, बाहर कैसा अंधेरा है। आज क्या चंद्रमा एकदम गायब है। मगर छोटे साइज। अच्छा, चंद्रमा साइज का था। अरे उससे क्या आता चलता है। मैं ऐसे ही सोच रही थी, ऐसे ही छोटे साइज का था। या उस दिन पूर्णिमा थी, बड़े गोल चांदी के थाल जैसा चांद निकला था। अरे उससे क्या आता जाता है। किसने इतना ख्याल किया था। ख्याल नहीं किया था, क्यों? हाँ, शमशान पर आकर कौन इतना ख्याल करता है। मुर्दा चलाने आए थे, जलाकर चले गए। मालती? हाँ, मालती का मुर्दा चलाने आए थे, याद है ना? तुम और तुम्हारा लायक दोस्त प्रदीप या दीपक, न जाने क्या नाम था। प्रदीप? हाँ प्रदीप, बड़ा अच्छा नाम है। प्रदीप शैतान भी। हाँ शैतान, पक्का शैतान, पक्का शैतान। उसी के लिए तो मालती मरी थी, उसी के लिए तो मालती मरी थी, उसी के लिए तो मालती मरी थी। सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे मालती, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कर पाऊंगी, किसी तरह नहीं कर पाऊंगी। मालती, इसके सिवा शशि, किसी तरह नहीं होगा। शशि, मैं किसी तरह नहीं। अरे मालती, तुम प्रदीप से शादी नहीं करोगी तो? शशि, मैं प्रदीप से शादी किसी तरह नहीं कर सकती, किसी तरह नहीं कर सकती। मालती, प्रदीप से शादी किसी तरह नहीं कर सकती। अरे मगर इतने दिनों तक तो तुम उसी से। शशि, इतने दिनों तक मैं जानती नहीं थी, समझती नहीं थी। अब सब कुछ जानने के बाद मैं उससे शादी नहीं कर सकती, किसी तरह। मालती, शशि, तुम क्यों आए? तुमने क्यों कहा शशि? तुमने क्यों कहा शशि? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। हाँ जानती हूँ शशि, कभी कुछ नहीं कहा, कभी। क्यों नहीं कहा शशि? क्यों नहीं कहा? तुम उसको जानती नहीं मालती। हाँ जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा सभी, सब जानती हूँ शशि। तब फिर क्यों? केवल इसीलिए मुझे अपने से दूर कर दोगे? केवल इसीलिए मुझसे ब्याह नहीं करोगे? मालती, प्रदीप ना होता उससे मेरे ब्याह की बात ना चली होती, फिर भी तुम मुझसे ब्याह करते ना, करते ना। अरे ऐसा सोचने से कुछ होता है? तो फिर क्या प्रदीप को मुंह नहीं दिखा सकोगे? मालती, ये भी कोई सवाल हुआ? मालती, प्रदीप को नहीं, मैं खुद अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकता। इस प्रकार अपने आप से हार कर तुमसे ब्याह करके न मैं खुद सुखी हो पाऊंगा, न तुम्हें सुखी बना पाऊंगा। क्योंकि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मेरी ही खातिर तुमने प्रदीप का जीवन नष्ट किया। और तुम सुखी नहीं हो पाओगे? अरे सुखी हो पाना क्या संभव होगा? नहीं होगा शशि। तुम उसको जानती नहीं मालती। मेरे तो सारे पत्ते खत्म होने को है। ये रहा लाल, चलो अब कितने लड़ाई और चल सके। लगता है सातू बाबू ने लगाया कुत्ते को। क्यों सातू बाबू भगा दिया? एकदम बैठा हुआ था यहाँ, मारा जोर से के लकड़ी। अरे निशाना ठीक बैठा? एकदम भरपूर पीठ पर। मैं मारता ना तो लकड़ी कुत्ते से 10 गज दूर गिरती। मेरा निशाना कभी ठीक नहीं बैठता। जहां भी लगाता हूँ ठीक उसके उल्टी तरफ लगता है।
क्यों माधवी बाबू, नींद आ रही है क्या? नहीं साधु बाबू, पता नहीं क्यों मुर्दनी में आके मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब मैं ही अनाड़ी रहा। मेरी तो ये सिर्फ तीसरी मुर्दनी है। हैं? बस? और नहीं तो क्या, उसमें भी कोई अपना न था। अच्छा, तो आपका रिश्तेदार या घर परिवार कोई नहीं है? घर परिवार जहाँ रहता हूँ वहीं घर बस जाता है। तंबू, डाक बंगला, कुलियों की बस्ती, सस्ता गंदा होटल, हर जगह रह चुका हूँ, कोई बाकी नहीं रहा। बीच बीच में कभी कभी अच्छे से कमरों में भी रात कट जाती है, मगर वह खर्चा बहुत होता है, लेकिन रहने लायक वही जगह होती है। ओह, समझा। समझे माधवी बाबू, पूरी संगत में पड़ गए, अपना चरित्र बचा कर रखिएगा। अरे बुरी संगति से ही चरित्र बिगड़ जाए, अब वह उम्र कहाँ। अरे बिल्कुल मत डरिए, हिमाद्री का चरित्र बिगड़ने वाला नहीं है, एकदम पक्का पुख्ता चरित्र है इसका। लगता है शशिदा आज मेरे चरित्र पे भरे बैठे हैं। नहीं हिमाद्री नहीं, ये तुम्हारे चरित्र की बात नहीं है, और न बात आज की ही है। ये जो चरित्र नाम का जंतु है ना, मैं उसी से खार खाए हूँ हमेशा से। हमेशा से? अच्छा साधु बाबू, ये जो ज्यादा रुपए खर्च करके कमरा भाड़े पर आप लेते हैं, वहाँ आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। बाबू, जरूरत सिर्फ वही पूरी होती है और कहीं नहीं। अरे आप भाग्यवान हैं। भाग्यवान तो आप भी हो सकते हैं, सीधा सा रास्ता है, जब कहिएगा दिखा दूंगा। अरे मैं जा चुका हूँ, काम बना नहीं, उल्टे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी। खैर चलो, अंत में मुक्ति मिली, जान बची। तो वे गुजर गई। अरे हटाइए भी। अरे हटाने की क्या बात है, वैसे वो मरी नहीं, भाग गई। आपका कहने का मतलब है पीहर चली गई? हाँ, भाग गई कहने से तो मतलब निकलता है कि किसी के साथ भाग गई। माद्री का ध्यान इन सब बातों पर खूब रहता है, किसी ने गलत समझा और बंटाधार हुआ। क्यों हिमाद्री? नहीं, मैंने उस दृष्टि से नहीं कहा। पर गानों से कोई फर्क पड़ता है? अरे कह तो रहा हूँ, मैंने उस दृष्टि से नहीं कहा। अरे पर मुझे पूरी निश्चिंता हो गई, माँ बाप की लाडली बेटी थी, रहने वाले भी दूर पटना के थे, चोरी चोरी छिपाकर दूसरा ब्याह भी करवा दिया। समझे साधु बाबू, चोरी चोरी छिपाकर, मानो मैं जानता तो बाधा देता मैं। उन लोगों ने इतना छुपाया, फिर भी आपको पता चल गया? अरे दुनिया में बहुत से हितैषी हुआ करते हैं ना, सो बड़े हितू बनकर मुझे सब सुना गए। अच्छा, तुम ये सब किस्सा क्यों सुना रहे हो? मालती का किस्सा नहीं कहोगे? मालती का तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। घर बसाकर भी आपका काम नहीं बना, घर भाड़े पर लेकर भी नहीं, अब आपको कहाँ भेजा जाए? अरे चूल्हे में, वो जो बड़ा वाला चूल्हा जल रहा है ना, उसी में। कम उम्र में लड़की के चक्कर में पड़ गए थे क्या? प्रेम, हिंदुस्तानी लड़का और प्रेम, इतना दम कहाँ है? क्यों? हिंदुस्तानी लड़के में प्रेम का दम नहीं होता? अरे औरों में कितना होता है मैं नहीं जानता, मुझ में नहीं था, इतना जानता हूँ। और हिंदुस्तानी लड़की, और हिंदुस्तानी लड़की। अच्छा भाई, आपने किया हो या न किया हो, क्या कोई लड़की भी आपके प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ी? मेरे प्रेम में? दुनिया में इतने लोग हैं, उन्हें छोड़कर। झूठे 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 झूठे। और यदि कोई मेरे प्रेम में पड़ता ही तो मेरी ये हालत होती, न मैं घर का न घाट का रहता। हाँ, सो तो है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? शशि बाबू की बहू की? नहीं, अच्छा, कहानी पूरी हो गई? अरे हाँ, वो तो कब की पूरी हो गई थी। उसके नहीं, मेरे जाने के पहले जो हाँ,
शशिदा उस लड़की की कहानी सुना रहे थे। हाँ हाँ, याद आया। कहानी पूरी हो गई थी। हाँ साहब, वो तो कब की पूरी हो गई थी। अंत में क्या हुआ? अंत में वो मर गई और क्या, और उसी खुशी में बैठे हम यहाँ विलायती ढाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मर गई वो तो जानी बात है। उसके पहले, मेरे जाने के ठीक पहले कुछ रहस्य सा था। नहीं, रहस्य वहस्य कुछ नहीं, सीधी सादी बात थी। था कैसे नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। उसी को लेकर तो ये लड़की की कहानी शुरू हुई थी। कौन सी लड़की की कहानी? लीजिए भला, ये मुझे ही मालूम होगा तो फिर आपसे क्यों पूछता? ओ हाँ हाँ, याद आया। आप पूछ रहे थे वो छोकरी मरी तो मलिक बाबू विलायती बोतल देने क्यों गए थे। इतनी देर बाद मलिक बाबू का प्रवेश होता है, उसी रहस्य का। यही आपका रहस्य है? तुम नहीं आओगे, ये लोग मेरा ही किस्सा कहेंगे, मेरा ही किस्सा कहेंगे। हाँ बोलिए शशि बाबू। किसका किस्सा? इस लड़की का किस्सा। मालती? मालती? मालती तो इसका नाम मालती था। इस लड़की का नाम मालती नहीं तो शशि बाबू, मैं अभी आया। मैं एक बार अभी आया। कहाँ जा रहे? अच्छा जाइए जाइए, हो आइए। मैं भी जरा एक बार रुका हो। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, हिंदुस्तानी यूनिटी दिखाई जाए। शिवाजी बाबू आप? मुझे जरूरत नहीं है। सुनो सुनो, हाँ थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पी लो, कोई नहीं जानेगा। अच्छा नहीं पी तो ना सही, कहानी सुनाओ अपनी, इन सब लोगों की कहानी सुनाओ अपनी कहानी सुनाओ। हाँ थोड़ी सी पी लो, कोई नहीं देख चुकाएगा, पी लो पी लो पी लो। अच्छा नहीं पी तो ना सही, कहानी सुनाओ कहानी। उधर देखो एकदम लाल, एकदम लाल। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना? उस दिन भी इसी तरह एक टक देखा किए थे, तब याद नहीं आया था। एक टक देखा किए थे, तब याद नहीं आया था, तब याद नहीं आया था। वह क्या मेरा दोस्त था? किसका था? चूल्हे में जाए। चूल्हे में तो गई, चूल्हे में तो गई, और तुम इसी तरह एक टक देखा किए थे, एक टक देखा किए थे। मैं क्या कर सकता था? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंतर, जमीन आसमान का अंतर। बोलिए मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ बोलिए। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेरी सोसाइटी में डिफरेंस है, पर मैं बचपन से उन लोगों के साथ उठी बैठी हूँ। वो मेरी सोसाइटी है, ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं मिस राय? मैं आपके भाई को पढ़ाता हूँ, और इस काम में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कहिए। तुम मेरी मामूली से काबिल नहीं सह सकते। मेरे जैसे बड़े आदमी है, इसमें मेरा क्या दोष? तुम चाहते हो थोड़े पैर पकड़ माफी मांगू? Do you want me to beg? मिस राय, हिमाद्री, तुम समझने की कोशिश करो। Why do you treat me like this? Do you understand how much I care about you? Why do you insult me? हिमाद्री, मुझे इस तरह बार-बार इंसल्ट मत करो, जलील मत करो बार-बार। मिस राय, इस समय आप उत्तेजित हो रही हैं। आपसे बात करना ठीक ना होगा। मैं चलता हूँ। हिमाद्री, I hate you, हिमाद्री, I hate you. हिमाद्री, I hate you.
क्या बात कही है सुलाने मेरी। मगर ऐसा लगा जैसे शशि बाबू जरा नहीं कोई फिक्र की बात नहीं, बाहर बैठे हैं थोड़ी खुली हवा में, तब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं। पास ही बैठे दिख रहे। शशिदाई की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं जरा सर में दर्द था, बाहर खुली हवा में बैठेंगे सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, नैया पार करो। अभी से नैया पार करना चाहते हैं? नहीं अभी क्यों, अभी तो बहुत मजे में हूं, और वैसे पार हो जाने में कोई नुकसान भी नहीं। मैं किसी को रोटी कपड़ा तो देता नहीं, इसीलिए मेरे पीछे कोई मेरे नाम को रोएगा भी नहीं। रोटी कपड़ा देने से कोई रोता नहीं। तो क्या आपके एकमेव द्वितीयम कोई एक सबसे खास भी थी? एक मेवा द्वितीयम, बाप रे बाप, इतना बड़ा कारोबार नहीं था कार्तिक बाबू, कहाँ से होगा। 15 बरस से जिस तरह की मैंने लाइफ लीड कर रहा हूँ वो तो। वाह साहब, मैं तो सोचा था आपने देश प्रदेश घूमकर बहुत तरह की जानकारी प्राप्त करी है। कैसी लड़कियों ने मेरा परिचय रहा ये तो आप सुन चुके, उसमें किसी को मेरा असर पड़ेगा कहना कठिन है। शरद बाबू ने अपने उपन्यासों में जिनकी चर्चा की है, क्या ऐसी आपको कोई नहीं मिली? कहाँ मिली? साधु बाबू, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है, थोड़ी सी लीजिएगा? वाह 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 वाह, यह हुई ना बात, जरूर लीजिए। एक ही तीर करें हम चारों और फल उसमें से एक को प्राप्त हो, यह भी कोई बात हुई। और तीर भी शमशान थी। अरे इतनी सारी डाल दी? अरे हिमालय बाबू, ये तो होम्योपैथिक डोज है, नींद मत लीजिएगा, ये पानी मिला दूं। नहीं, मैं एकदम वैसे ही लूंगा जैसे आप लोगों ने ली है, एकदम नीट। प्रेमो, पर जरा छोटे छोटे घूंट लेना। ये तो बड़ी कड़वी है, आप लोग इसे किस सुख के लिए पान करते हैं? इसका स्वाद जीभ को नहीं दिमाग को मिलता है, समझे? आइए शशि बाबू, दिमाग खुलासा हुआ? अरे दिमाग? मेरे दिमाग को क्या हुआ था? अच्छा, मेरा गिलास कौन सा है? ये रहा, लीजिए, थोड़ा डाल दूं और। शरी बाबू, आपने तो वो कहानी खत्म ही नहीं की। कहानी? हाँ, इस लड़की की। अच्छा साधु बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्यों नहीं दूंगा? मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, एकदम गहरा दोस्त। तो है ही। नहीं, इससे भी ज्यादा, एकदम बचपन से। या मान लीजिए मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई। मैं एक लड़की से आपका परिचय करवाता हूं और कहता हूं कि मैं इससे ब्याह करने जा रहा हूं। लड़की भी मान लीजिए मुझको चाहती है। आप क्या उसे? नहीं, मैं ठीक से कह नहीं पाया। मान लीजिए आप जानते हैं कि मैं बहुत बुरा आदमी, एकदम निष्ठुर हूं, क्रूर हूं, स्वार्थी हूं। मेरे साथ ब्याह करके लड़की सुखी न हो पाई। आप ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं।
लड़की भी समझ गई है कि प्रदीप माने मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, तब भी क्या आप उसे नहीं, आप ये नहीं पाते हैं कि आप उस लड़की से प्रेम करते हैं और लड़की भी आपको चाहती है, तब भी क्या आप उसे मेरे हाथों में सौंप देंगे? बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा आपने, अब इसका क्या जवाब दूं? आप कार्तिक बाबू, तुम हिमाद्री, यही सवाल अगर आपने मुझसे आज सुबह पूछा होता या शाम तक भी पूछा होता तो इसका सीधा सा छोटा सा उत्तर देता, हाँ, क्योंकि वह लड़की आपके दोस्त की मंगेतर है। और इस समय इस समय कुछ पता नहीं, यदि पता होता तो शायद इसे पीने की जरूरत न पड़ती। भारती ये लोग नहीं जानते भी तो कहते नहीं, भारती कहते नहीं, भारती कहते नहीं। मालती, तुम यहाँ क्यों आई? मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई थी। ये क्या कर रही हो मालती? ये क्या? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रसाद। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था तुमसे प्रेम करती हूँ और उससे घृणा। जानते हो उसने मुझे किस चीज से जलाया है? हमारी शादी पर तुमने वो चांदी का चाकू दिया था ना, उसे गर्म करके। चांदी जल्द गर्म होती है और उसके पास वक्त कम था। ना 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 ना। नहीं पता हिमाद्री? नहीं शशिदा, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों में से किसी को पता नहीं? मैं जानता हूं। आप कर्तव्य समझकर उस लड़की को मेरे हाथों में सौंप देंगे और साल भर के अंदर अपने ऊपर तेल छिड़क कर वो आग लगा देंगे। फिर हम और आप उसके जले शरीर को कंधा देंगे और उसे इसी तरह यहां लाकर फूंक देंगे। आप कहेंगे वो मेरे अत्याचार से मरी है। ठीक ही तो है, इसीलिए मरी है। आपका क्या दोष? और आप भी दुनिया के साथ गला मिलाकर जब तक कह सकिए, जब तक कैसी लगी कहानी? मालती की कहानी बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इन दोनों की भी कहानियां हैं, एक एक आदमी की एक एक कहानी। साथ साथ सुनने में शायद अच्छी न लगे, मिलती जुलती है ना, पर मुझे इनमें से हर एक कहानी समान रूप से अच्छी लगती है। बार बार सुनने को मन चाहता है। प्रेम कहानी है ना, प्रेम कितना प्यारा सा शब्द है जो ठीक इस आग की तरह जलाता भी है और जुड़ाता भी है। अच्छा, ये पीड़ा, ये यातना, ये जलना सब फालतू की बात है, सब फालतू। मरने पर तो जलना ही होगा, जैसे कि अभी मैं जल रही हूँ, पर ये जलना केवल जलना ही है। सोलह, मेरे, 17, मेरे, 18, मेरे, 19,
मेरे। अरे क्या कर रहे हो शशीला, 4 खाना पहले खुला हुआ है। अरे तुम रुको तो। मेरे 20 मेरे पास डबो तो हुआ ना, 4 खाना पहले खुला है, इस बार डबल। काली झंडी तैयार हो गई। अरे लाओ रंग लगाऊं। शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर थी। बचपन से बड़े होने तक हर शाम को आसमान के बदलते रंगों को देखा करती थी। फिर 3 साल तक नहीं देख पाई, 3 साल तक नहीं देख पाई। कमरे में तो खिड़की ही नहीं थी। पूरे पश्चिम की तो बात हुआ, बाहर की जितनी खिड़कियां थी सबकी सब बंद, सब पे धुंधला सा शीशा लगा रहता था। रोशनी आती थी पर दिखाई कुछ नहीं देता था, दिखाई कुछ नहीं देता था। और हर शाम को आसमान के बदलते रंगों को देखने के लिए मैं छटपटा जाया करती थी। मन चाहता था एक बार वो पश्चिम वाली खिड़की खुली रह जाए और मैं जी भर के आसमान के बदलते रंगों को अपने में भर लूं। रंग खोलिए। काला पान? क्यों, कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज क्यों होगा। चलो हिमाद्री। 3 साल बाद आसमान देख पाई। वो पश्चिम वाली खिड़की थी ना, उसका कब्जा कर लिया। घर की हालत बड़ी बुरी थी, छत से पानी चूता था, बाबूजी को लकवा मार दिया था। फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जानते हैं क्यों? आसमान के बदलते रंगों को देख सकते। जानते हैं, आसमान के बदलते रंगों को देख मुझमें जाने क्या क्या भाव आते थे। मैं एकदम लाश से आरक्त होती थी। आरक्त, जैसे मैं कोई नववधू हूँ, कोई राजकुमार आएगा और मेरा वरण करेगा, कोई राजकुमार आएगा और मेरा वरण करेगा। छी छी छी, हे भगवान, मैं क्या अनशन बन गई। ये किस्सा छोड़ना है, मैं तो जलकर आऊंगी, मैं जलकर आऊंगी। ये लीजिए साहब, रंग का इक्का। वाह वाह वाह, यही तो चाहिए था। गया। 11, 13, 16, 17। अरे गिनकर क्या कीजिएगा, ये तो जाली बात है। 18, 19। चलिए काली झंडी, काली झंडी। अरे फिर हार गया ना। हारिएगा नहीं, सोचे विचारे 19-20 की कॉल दीजिएगा तो और क्या होगा। जाओ जरा एक बार देखा हो। कार्तिक बाबू, इसका ग्लास तो बढ़ाइए जरा। अरे शुरू में थोड़ा नशा हुआ था, अब तो लगता है जैसे वो भी मीटा जा रहा है। क्यों, बतला सकते हैं? हाँ, मेरा भी। विलायती बोतल ना होती तो कहता कि सालों ने पानी मिला दिया हो सकता है आपकी बात ही सही हो। थोड़ा रिलैक्स होके पिए बिना नशा रंग नहीं लाता। तो चलिए फिर थोड़ा रिलैक्स होकर पीकर देखा जाए। क्या कहते हैं? चीयर्स। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो इस काम में बहुत दिनों से हैं ना? हाँ, करीब करीब 26 साल हो रहे हैं। आपसे कभी दवा देने में गलती नहीं हुई? गलती न जाने कितनी हुई है, पर ऐसी गलती कभी नहीं हुई कि रोगी मर ही जाए। सच पूछिए तो तेज जहर का तो बहुत काम पड़ता नहीं। थोड़ा बहुत तो पड़ता होगा। हाँ, सो क्यों नहीं। आपको किसी का सफाया करना होगा तो बतलाइएगा। नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अरे मुझे पड़ती, यदि बीवी खुद ही रिहा न कर गई होती तो। अच्छा, आपसे किसी ने कभी जहर मांगा? नहीं नहीं। मांगता तो क्या करते? नहीं देता। क्यों? खून खराबे में मैं नहीं पड़ता। नहीं नहीं, खून खराबे की बात नहीं करता। मान लीजिए कोई अपने लिए ही मांग रहा हो तो।
तब भी नहीं देता। ना देते, बदले में कुछ और दे सकते थे, देते। अरे उसे बहुत ही जरूरत होती, जिंदगी से मौत उसके लिए ज्यादा अच्छी होती तो। आप लोग तो जीवन दर्शन की बातचीत शुरू कर दी। अरे साहब, ये स्मशान की महिमा है, और उस पर से स्मशान काली का दिव्य प्रसाद है। जीवन दर्शन की बात हो, उसमें ताज्जुब क्या है? तो हो ना, मेरी जिंदगी तो भाग दौड़ में ही बीत गई। कभी उस पर रुककर गौर करो, इस तक की फुर्सत नहीं मिली। जीवन न सही, आपने मौत तो देखी है। मौत तो बराबर चारों ओर देखता रहता हूँ। इस तरह नहीं, खूब अच्छी तरह। बोलिए, देखी है? हाँ, शायद देखी है, एक बार तो देखी ही है। उस समय आपने जीवन को नहीं देखा था? शायद देखा था। हो सकता है मौत को देखने पर ही शायद जीवन को जाना जा सकता है। जिंदगी, मौत, जीवन, मरण। यदि मरण में भी जीवन ना उभरे, यदि मरण केवल मरण ही रह जाए, जीवन क्या है, क्या कोई मुझे समझा सकता है? पगला घोड़ा, मारा चाबुक, दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता, खड़ी हो बीवी। आता है पगला घोड़ा। बीवी यदि रास्ता छोड़ खड़ी ना हो तो क्या आप उसके ऊपर से चले जाएंगे? बीवी यदि रास्ता छोड़ खड़ी ना हो तो क्या आप उसके ऊपर से चले जाएंगे? दर्शन करके केवल इतना समझ में आया, जीवन का कोई सर पैर नहीं है। जीवन केवल मौत ही ला सकता है। अरे साधु बाबू, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, न जाने क्या क्या बके जा रहे हैं। वाह, यदि पी लेने से ये सब आलतू फालतू की बातें होती तो फिर जय भोलेनाथ। Cheers. क्या हुआ, सब लोग एकदम चुप क्यों हो गए? इस लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा नहीं हो पा रहा है। कहां तक सुन चुके हैं? वो भी तो ठीक तरह याद नहीं। आपको लकवा मार गया था, शायद यहीं तक सुना था। हाँ, वो आज 4 साल से लगवे में पड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही लगवा मार गया था। ससुराल? लड़की की शादी हो चुकी थी? हाँ, बाकायदा मंत्र पाठ वगैरह करके साबित दस्तूर सब हुआ था। ओके, तो उसके पति पति? हाँ, मंत्र पढ़कर ब्याह हुआ था तो पति तो है ही। आज कहाँ है नहीं मालूम, किसी पागल खाने में भी हो सकता है। I see. उनके घर एक ज्योतिषी आया करता था। सच पूछो तो उसकी परवरिश उन्हीं के यहाँ से होती थी। उसी ने सब गणना करके बतलाया था कि ब्याह कर देने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक तो लड़के का पता था, पर उसके बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गया। लड़की ने उसे देखा ही नहीं। सुहाग रात के दिन भी वो लापता था। अरे आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली? हमारे डॉक्टर खाने में जितने मरीज आते हैं ना, उसमें बकबक करने की बीमारी सभी को होती है। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक ससुराल में कैद रहने के बाद एक रात में वो वहां से भाग आई। ससुराल से मिले गहने उसने एक दरबान को देकर उसे पटा रखा था, तो उसी ने सारा इंतजाम करके उसे यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ आकर लड़की ने देखा बाप घाट पकड़े हैं, मकान की हालत खस्ता हो चुकी है, और खाने पीने का जुगाड़ यदि हो जाता है तो मलिक बाबू की दया से। ओह, इतनी देर बाद मलिक बाबू का प्रवेश होता है, वही रहस्य की बात का। हाँ, वही रहस्य।
मलिक बाबू ने इसी आशा में बुढ़े को जिलाए रखा था, कौन जाने लड़की किसी दिन लौटे ही। खर्चा ज्यादा तो नहीं था, बस कोसा जाता था। अब समझ में आ गया, आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं। तो वो मरी कैसे? अबॉर्शन था क्या? वैसा होता भी तो कहता कि हाँ अच्छा हुआ, उसके मरने में कोई सार्थकता हुई। चुप करो, चुप करो। माने मलिक में वो सामर्थ्य ही नहीं है, रुपए खर्च करके भी नहीं रख सका। लड़कियों की जरूरत उसे खाली हल्के से मन बहलाव के लिए थी। चुप करो, चुप करो, चुप करो। बस घंटा भर और लगेगा। घंटा भर और, बस घंटा भर और। मतलब थोड़ा, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिली? क्या मैं भागती नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, रच भी नहीं हूँ? ये कुत्ता फिर आ गया। कुत्ता फिर आ गया। एक बाजी और हो जाए। अरे नहीं, अब ताश में मन नहीं लग रहा है। तो हटाइए, मन ना हो तो कुछ बढ़िया सी प्रेम कहानी हो जाए। प्रेम कहानी यहाँ कौन छेड़ेगा? हिमालय बाबू, आप ही की तो सबकी उम्र है ना। उम्र से क्या होता है साधु बाबू? शशिदा ने कहा ना, हम हिंदुस्तानी लड़कों में प्रेम करने का सामर्थ्य ही नहीं होता। अरे भाई, तुम मेरी बात को झूठी ही साबित कर दो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो कैसे कर सकता हूँ? आप गुरुजन जो ठहरे। क्या कहना है गुरु भक्ति का? ए, गड़कर किस्सा सुनाने से चलेगा? तब तो मैं भी चांस ले सकता हूँ। दीजिए ना, हम लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत दिनों पहले ये कहानी सुनी थी। जिसने सुनाई थी वो सच्ची घटना कह रहा था या गढ़कर, मुझे पता नहीं। और अपनी ओर से उसने इसे सच्ची घटना ही कहा था। सच झूठ का फैसला बाद में कर लेंगे, आप सुनाइए ना। तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? मैं तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती, बता सकते हो क्यों? बिल्कुल नहीं जानती। कहानी सुनी थी एक मोची से। जिसे? हाँ, क्यों मोची प्रेम नहीं कर सकता? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? आप सुनाइए ना। एक बहुत बड़े मकान के सामने बैठकर मोची रोज जूता सिलाई करता था। मकान में बहुतेरे लोग आया जाया करते थे, कभी कभी जूते की मरम्मत भी करवाते थे। मोची रोज ही हर तरह के लोगों को देखा करता था। ये तुम्हारी कहानी है? ये तुम्हारी कहानी है? इन्हीं आने जाने वालों में एक 10-12 साल की लड़की भी थी, बराबर आया करती थी। कभी कभी जूता भी सिलवाती थी, एक आध बातचीत करती थी, फिर चली जाती थी। जितने लोग भी आते थे उनमें मानो इस लड़की का ही वो मोची इंतजार किया करता था। जरा रुकिए तो, आपकी उस मोची की उम्र क्या रही हो? उम्र काफी थी, यही 40-50। ओह, तो वात्सल्य प्रेम था? प्रेम था भी या नहीं इसका फैसला तो हो जाने दो। तुम तो पहले से ही वात्सल्य करने लगे। हाँ, आप सुनाइए। इसी तरह दिन बीत चले, महीनों और साल भी बीत चले। बाद में लड़की का वहां आना काफी कम हो गया, और वो आती भी तो मोची की ओर खास ध्यान न देती। मोची की बड़ी इच्छा करती कि पुकार कर उससे 2 बातें करे, पर बेचारा साहस नहीं कर पाता था। क्यों? साहस क्यों नहीं कर पाता? अरे भाई, 20 सालों गुजर गए थे, लड़की पहले जैसी बच्ची थोड़ी रह गई थी। हाँ, आपके कहने का मतलब उसके अपने मन में। हाँ हिमाद्री, हाँ,
उस मोची के अपने मन में क्या था वो इसे खूब अच्छी तरह जानता था, और जितना ही समय गुजरता जाता था वो इस बात को खूब अच्छी तरह समझता जाता था। 24 घंटे वो लड़की ही उसके दिमाग में घूमती रहती थी, उठते बैठते सोते जागते हर समय। असल में उस मोची के माँ बाप भाई बहन घर परिवार कुछ भी न था, बेचारा एकदम अकेला था। तो जैसे बाहर से अकेला था वैसे ही सूना उसका मन था। उस सूने मन में उस लड़की ने खूब अच्छी तरह से डेरा जमा लिया। तो उसने अपने मन को और कहीं लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? बुद्धू था बुद्धू। यार दोस्तों को जुटाकर वो हल्ला कर सकता था, इधर उधर मौज मस्ती ले सकता था, पर ना, उसने तो उस लड़की के नाम की कसम खा रखी थी ना, तो उसी की याद में डूबा रहता। क्यों? उसका मन भर देती थी ना, इसके सूने मन को भर देती थी। मैं समझ रही हूँ, चाहती नहीं पर समझ रही हूँ। समझा? समझे? पश्चिम की खिड़की से दिखने वाला सतरंगा आकाश कितना बेचैन कर देता था, कितनी तकलीफ देता था, पर कैसे मन भर देता था। आज भी भर देता है, आज भी। इसीलिए इतना बेचैन रहती हूँ, इसीलिए इतना बेचैन रहती हूँ, इसीलिए इसके बाद अचानक एक दिन लड़की का आना बंद हो गया। अरे लड़की की शादी हो गई? हाँ, हम हिंदुस्तानियों के घिसे पिटे सड़े प्रेम की ट्रेजेडी। हिस्सा पूरा हो गया ना, अभी और है, पर आगे की घटना सच्ची है या मोची की अपनी कल्पना कह नहीं सकता। उसके कहे अनुसार लड़की ब्याह करके सुखी नहीं थी। उसके पति के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था। क्या हुआ? रुक क्यों गए? इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उस मोची से फिर मुलाकात ही नहीं हुई। अरे कार्तिक दा, कहीं ऐसी जगह पर भी लाकर किस्से को छोड़ा जाता है? हाँ, इस किस्से को शुरू ही नहीं करना चाहिए था। नशे की झोंक में लगा था कि खूब जमेगा, पर अब लगता है कि इस किस्से में कुछ दम नहीं रहा। इतनी देर बाद नशा कुछ जमा है। हाँ, मेरा रेप। बाहर जा रहे हैं बाबू? नहीं। कार्तिक दा बड़ी फालतू बातें करते हैं। मैंने कौन सी फालतू की बात की? अरे मन भरा है नहीं भरा है घंटा। प्रेम कहानी सुनकर आपका मिजाज गर्म हो गया है। प्रेम कहानी? वो प्रेम था और नहीं तो क्या। अच्छा पहले ये बताइए प्रेम होता क्या है? बतला दो ना, बिल्ली की कहानी, बिल्ली की कहानी, बिल्ली की कहानी। प्रेम वह है जो आकाश पाताल के कुलाबे मिलवाता है, तकलीफ देता है, बेचैन करता है और फिर कुछ ऐसा उल्टा पलटा काम करवा देता है कि सब कुछ चल कर रहा हो। मिली? क्या बात है? मिली? इधर आओ जरा। क्या बात है? तुम कहाँ गई थी? जॉनी की घर। बड़ी रात हो गई है ना? बड़ी रात माने मैं कहकर गई थी। जॉनी की बर्थडे पार्टी थी। ओह,
पार्टी थी? A party means just couple of friends. Just a little get together, not much. Just a little get together. तुम अभी तक जग रहे हो? हाँ, मैं पढ़ रहा था। Okay. Good night. Good night. इधर आओ जरा, सुनो। क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें मालूम है वे सब लोग सो गए हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। नींद आ गई। ऐसे समय तुम मुझसे गुड नाइट करके जिस तरह भागी जा रही हो उससे बड़ा ताज्जुब हो रहा है मेरी। सुनो क्या बात है? मिली, तुमने शराब पी है? किसने कहा? इसी डर से भाग रही थी? पार्टी में जरा पीना लेती तो कितनी अशिष्टता होती। It would have been so rude. It would have been कितनी अभद्रता होती। इमेजिन कितनी अभद्रता होती। अभद्रता, शराब न पीना अभद्रता है। Imagine, I just had one drink in Dolly's birthday honor. Those people forced me. बहुत जबरदस्ती की हमारी बहुत जबरदस्ती की। मैं बहुत मना की बहुत जबरदस्ती की। जबरदस्ती और तुम्हें? हाँ, सिर्फ जबरदस्ती की। माने नहीं, God promised फिर कभी पीऊंगी। Please Himani, don't get upset. I'll never drink again. Please Himani, don't get upset. It was just one toast. I'll never do it again. Please Himani. अरे मिली, मेरे गुस्सा होने ना होने से क्या आता जाता है? तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी के लिए जो करना हो तुम। Please don't say that. Do you know how much you mean to me? Please don't say that, Himani. Please don't say that. Please Himani. उस समय तुम्हें मेरे अच्छा या बुरा लगने की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। तुम्हारी नजरों में उसकी तो कानी कौड़ी कीमत भी नहीं। लगता है तुम्हारे जीवन में मेरा अस्तित्व ही ना हो। Himani, please don't say that. You know how much you mean to me. I'll change. I promise I'll change. I'll stop drinking, smoking, everything. I'll change. But try to understand. They're my friends. I've gone swimming, dancing, drinking with them. Please give me some time. Please. Don't get upset. We'll be talking to over. Please, Himani. चलोगे ना? Please let us talk it over. Please. चलोगे? तुम भी मुझे कुछ समय दो। Please, Himani. जलता है तो जलने दे। काहे का जलना? यही आप लोगों की प्रेम की आग का जलना। देखिए कैसे प्रेम से पी रहा हूं, बिना पानी मिलाए नीट शराब। क्या है, विस्की? हाँ। अच्छा, शराब पीने में बुराई है क्या? ये सवाल पूछने के लिए तुम्हें हम ही मिले भैया। लेकिन ज्यादा नहीं पीनी। क्यों? ज्यादा पी लेने के बाद टहलना चाहिए। अरे टहलना चाहिए? गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? ओह, तो फिर मुझे चिंता है नहीं, गाड़ी है नहीं। गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आखिरी दिन की याद आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, यह होने वाला नहीं है। आखिरी दिन की याद। ऐसा नहीं हो सकता मिली। 2 साल में बहुत बार बहुत तरह से कोशिश करके देख चुका हूं। ये होने वाला नहीं, ये होने वाला नहीं। तुम्हें एकदम अच्छी नहीं लगती? नहीं मिली, नहीं, ये बात नहीं है। तुम जानती हो मैंने कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने मुझे कुत्ते की तरह दुसरा दिया। तुमने मुझे मेरी परिस्थिति समझी, कभी चेष्टा नहीं, कभी मुझे समझने की चेष्टा नहीं की। कब की? तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की, कभी नहीं की। सच तो ये कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया। ये झूठ है मिली, तुम जानती हो ये झूठ है। तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में इतना बड़ा अंतर है कि ठीक है, अगर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं। कहाँ जाओगी? तुमसे मतलब? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, हिमाद्री, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मिस राय, मैंने आपके डैडी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।
बाहर के कमरे में मेरा सूटकेस रखा है। शायद अब हमारी मुलाकात न हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। Himati, are you living for good? Himati, if you leave me like this, if you're living for good, I'm going to keep drinking. I'm going to keep drinking. I'm going to keep drinking. I'm going to kill myself by drinking. Himati, I'm going to kill myself. Himati, I'm going to kill myself. I'm going to kill myself. I'm going to kill myself. I'm going to kill myself, Himati. Congratulations, Miss Rai. आपकी दुनिया बनी रही। दादू बाबू, रशीदा, ज्यादा पीकर गाड़ी नहीं चलानी। ज्यादा पी लेने से ना होशो आवाज रहता नहीं, खूब जोर से चलाने की इच्छा करती। ज्यादा पी लेने से होशो आवाज तो रहता नहीं, जोर से चलाने की इच्छा करती। 60 मील, 70 मील, 80 मील, 90 मील, उसके बाद गाड़ी टकरा जाती है, चक्का चूर हो जाती है, शरीर के कितने कितने हो जाते हैं, एकदम की पहचाना भी ना जा सके। शकीदा एकदम भूरकर, शकीदा एकदम भूरकर। क्या हुआ हिमाद्री? हिमाद्री क्या हुआ? बैठो बैठो। अरे आप बैठो बैठो हिमाद्री, क्या हुआ? हिमाद्री बैठो। एक घूट ले लो। शशीदा, शशीदा, वह एक्सीडेंट था, सुसाइड नहीं था। वह एक्सीडेंट था, सुसाइड नहीं था, सुसाइड नहीं था। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक तोड़ा फोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीवी, आता है पगला घोड़ा। घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है, घोड़ा पगला गया है। ले बेटा। बाबूजी, आप हमें लक्ष्मी क्यों पुकारते हैं? हमारा नाम तो लक्ष्मी है। तू मुझे बाबूजी क्यों कहती है? मेरा नाम तो... हम भला आपका नाम कैसे ले सकते हैं? वाह, तू मेरा नाम नहीं ले सकती? मैं तेरा आदमी हूँ क्या? उससे भी ज्यादा। अरे बाप रे, उससे भी ज्यादा? वो क्या होता है? पता नहीं। तुझे तो कुछ भी पता नहीं, जो पूछो पता नहीं। हम पढ़े लिखे थोड़े हैं बाबूजी। अरे पढ़े लिखे होने से क्या सब कुछ जाना जाएगा? बाप रे, पढ़ लिख के भी न जाना जाएगा? घंटा जाना जाएगा। तो क्या? रुमाल धो दें? अरे अभी सवेरे ही तो धोके दिया था, फिर क्या धोएगी? दो ना बाबूजी, हम दूसरा साफ रुमाल देते हैं। देख लक्ष्मी, मुझसे इतनी सफाई नहीं पसोड़ेगी। हमें जो अच्छा लगता है। तू तो मुझे एकदम निकम्मा कर देगी, अपने हाथ से तो कुछ करने ही नहीं देती। दो ना बाबूजी दे। जा, तेरा भात का है, जा उसे खाने दे। बाबूजी, खुदवा तो है, फूटी आप नहीं सुहाता। अरे पर तो उपाय ही क्या है? मैंने उसे छोड़ दिया तो तू मुझे ही छोड़ देगी। बाबूजी, हम तो तुम्हें मर के ही छोड़ेंगे, आप ही भला हमें छोड़ दें। मुझे तो उन दोनों में से कोई चांद नहीं दिखता। तू अच्छी खासी तगड़ी, जल्दी मरने से रही। राम है, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? जा। भुलुआ, भुलुआ, किधर आ बिचुआ, चले किधर आ भुलुआ, आ बिचुआ, आ। शशि बाबू, आपने तो मैं एक सवाल पूछा था, अब मैं पूछूं? हाँ हाँ, बड़ी खुशी से, पर उत्तर नहीं पाइएगा। क्यों?
अरे किसी भी सवाल का उत्तर होता ही नहीं। मान लीजिए आपको कोई कीमती हीरा रास्ते में गली में पड़ा मिल जाता है, आप उसे उठाकर घर ले आते हैं। घर लाने पे लगता है इतना कीमती हीरा आपको घर में रखने लायक शक्ति नहीं, आप उसे किसी और को भेज दे देते हैं। वह आदमी उस हीरे का दुरुपयोग करता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी बड़े आदमी को भेज दे देता है। वह बड़ा आदमी उस हीरे का दुरुपयोग करता है और हीरा घूम फिर कर फिर उसी गंदी नाले पे आया पड़ता है। आदमी को आदमी रहने दीजिए ना, उसे फालतू में हीरा फीरा क्यों बनाते हैं? आपका सवाल क्या है? क्या उसे उठाकर लाना गलत था या उसे किसी और को दे देना गलत था? गलत? अरे साधु बाबू, आदमी जो कुछ भी करे वो गलत ही होता है, इसलिए गलत शब्द यहाँ कोई मायने नहीं रखता। अब टूटे बिना पता कैसे चलता है कि कुछ मिला था? वो पता चलता है। काकी बाबू आप फिर फालतू बातें करने लगे। फालतू बातें तो फिर जाने दीजिए। जय भोलेनाथ। पगला घोड़ा, तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? पगला घोड़ा सब तहस नहस कर रहा है, सब तहस नहस कर रहा है। पगला घोड़ा, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी? क्या मैं मानती नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, लक्ष्मी नहीं हूँ? बोतल क्या खाली हो गई भैया? ओ साधु बाबू, ओ साधु बाबू, आप कहाँ थे? यही नहीं, अभी तो बाकी है। कौन? दरवाजा खोलो बाबूजी, हमें लक्ष्मी। लक्ष्मी? दरवाजा खोलो बाबूजी, हमें लक्ष्मी। आप इधर आ। इतनी रात के? आप बाहर नहीं रह सकते बाबूजी। क्यों, क्या हुआ? मालकिन वो कुछ बोलती है तो मालिक बेबुरा बता, नहीं बाबूजी, तो फिर वहाँ क्यों नहीं रह सकती? हमें अपने पास रखो। अपने पास रख सकता तो क्या वहाँ भेजता? बोल, अपने पास रख सकता तो क्या ये इल्जाम करता? सुन, तो थोड़े दिन और देख ले, अच्छे परिवार में तेरा इल्जाम करा है, अच्छी तरह काम करेगी तो सारी जिंदगी कट जाएगी। तू तो काम करने से घबराती नहीं। हमें अपना काम करने दो बाबूजी, हमें अपना काम। अपने पास रख सकता थे। मेरा कोई लंबा चौड़ा मकान है जिसमें तुझे छुपा कर रखूंगा। बोल, झोपड़ी में तो कहाँ छुपेगी? जो देखेंगे ये पूछेंगे कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हम एकदम चुप रहेगा बाबूजी। बाबूजी हमको भगा मत बाबूजी। बाबूजी हम तुम्हारा बैठ हमें पैर भी नहीं धरेगा बाबूजी, तुम हमें छूना भी मत। हम पैर तो नहीं कहेगा बाबूजी, कोई नहीं जानेगा बाबूजी, कोई नहीं जानेगा। तो जैसी औरत को मैं अपने पास रखूं, इससे मेरे काम पर असर पड़ेगा। जा जा, उठ। कहते ना नौकरानी है बाबूजी, कहते बाबूजी मैं भगाऊं, बाबूजी मैं भगाऊं, बाबूजी मैं जा, घर जा, उठ उठ। हाँ लक्ष्मी, हाँ वही तेरा घर है। वे लोग बड़े अच्छे आदमी हैं, माधव बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ऐसे घर में रहकर तेरा भला ही होगा। भला होगा? हाँ लक्ष्मी, हाँ कोशिश करके देखना, मन लगा के रख, भूलवा तेरे पास है ही, धीरे धीरे तू सब कुछ भूल जाएगी। भूल जाएंगे? हाँ लक्ष्मी, हाँ दुनिया में बहुत कुछ भूलना पड़ता है और भूला भी जाता है। तुम हमें एकदम भूल गए बाबूजी, एकदम भूल गए। हम चाहते वही क्यों नहीं बच जाएंगे बाबूजी, क्यों नहीं बच जाएंगे? कुछ ऐसे रोजगार की खातिर हम जैसी कितनी लड़की रोज खरीदे हैं, बेचे हैं। तुम काहे हम लोगों से बात की? हमारे खा फिर हमें क्यों दूर भगा रहे हैं बाबू? इसे भगाना कहते हैं। और इसको क्या बाबू? हमें यही रहने दो बाबूजी, बाबूजी हमें यही रहने दो। जा, घर जा।
शशि बाबू, उस समय आपने एक सवाल पूछा, अब मैं पूछूं? जरूर जरूर। कार्तिक बाबू, आपका वो मूर्छी ही मजे में रहा। अच्छा, वो कैसे? उसे कुछ मिला नहीं, सारी जिंदगी उसने मिलने की आशा में बिता दी। हम सबका ऐसा नसीब कहाँ है? हमें कोई चीज हाथ लगी नहीं कि गोलमाल शुरू। हम में से कोई किसी चीज को ठीक तरह से रखना तो जानता नहीं। बच्चे जैसे मिट्टी के खिलौने को तुरंत तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, वैसे ही हम पल भर में हाथ लगी चीज को चूर चूर कर डालते हैं और फिर मैं करके रोने बैठते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आपका मतलब है कि मोची ही मजे में था, उसने कुछ पाया नहीं इसीलिए? Get out! Get out! Get out! हिमाद्री, जरा एक बार और उलट पुलट आओगे और जरा साधु बाबू को भी देख लेना। ये लड़की मरी कैसे? हार्ट फेल, हार्ट की ही कोई बीमारी थी। हार्ट की बीमारी? एंजाइना पेक्टोरिस। ओह, मैं यही सोच रहा था कि लड़की मरी कैसे। हाँ, क्या क्या सोच रहे थे? अरे वो मरना चाहती थी। हाँ, बीच बीच में ऐसा भी सोचती थी। किसी तकलीफ के कारण? ना ना। नहीं दीजिएगा। नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों दूं? मेरे जिंदा रहने के बाद तकलीफ और नहीं सही जा रही है। मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं तब फिर मरना क्यों चाहती हो? वो भी पता नहीं। आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम इसीलिए मरना चाहती हो? शायद। तुम पाना क्या चाहती हो? वो भी पता नहीं। कुछ चाहती जरूर हूं, जानती हूँ कुछ मिलता नहीं। क्या जानना चाहिए और क्या पाया जा सकता है, वो तो कभी जाना ही नहीं। आप बता सकते हैं कि पाने को क्या है और क्या पाने पर जिंदा रह जाता है। तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर दूसरी बहुत सी लड़कियों को यदि... दूसरी लड़कियों को रुक क्यों गए? ठीक से नहीं जानता। शायद प्रेम मिल जाए तो वो जिंदा रह सकती है। प्रेम? वो क्या है, कैसे मिलता है? मैं तो कुछ नहीं जानती। अच्छा, आपकी काफी उम्र हुई है। हाँ। आप बता सकते हैं क्या? कि वो जैसी लड़की कभी पा सकती है? क्या? किसी का प्रेम पा सकती है, किसी को प्रेम कर सकती है। जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। सच कह रहे हैं? पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ा ही होती है। मैं तकलीफ चाहती हूँ, दर्द चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
तकलीफ चाहती हूँ, दर्द चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मुझे जहर दे दीजिए। नहीं। ठीक है, मत दीजिए, दूसरे भी बहुत उपाय है, दूसरे भी बहुत उपाय है। सुनो। क्यों? तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप कैसे जानेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ है और आपकी बातों पे विश्वास करना, लेकिन कितना कठिन है, कितना कठिन है। तुम मुझे थोड़ा समय दोगी? सो नहीं होगा, सो नहीं होगा। तुम मुझे थोड़ा समय दो सो क्यों? ताकि तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें विश्वास दिला सकूं। नहीं होगा। उसके बाद तुम जो मांगोगी दूंगा। दीजिएगा, दीजिएगा। तुम मुझे 7 दिन का समय दो। यदि तुम्हें तब तक विश्वास न दिला सका तो जो मांगोगी दूंगा। दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगता है शायद वो जिंदा रहने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाई। बुद्धू, उसे मालूम नहीं था ना, जिंदा रहने पर सब संभव होता है। क्या संभव होता है? क्या तुम मुझे मालती बना सकते थे, मिली बना सकते थे, लक्ष्मी? इससे तो जो हुआ अच्छा हुआ, वहां पड़ी जल रही है, चले मरे। मान लो मेरी उस कहानी के मोची की तरह यदि कोई इस लड़की के मन को भी भर देता, कोई भी, बूढ़ा, काना, लूला, लंगड़ा, कोई भी, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पगला घोड़ा, तुमने वैसा क्यों नहीं होने दिया? और यदि किसी दिन वो लड़की ये जान पाती तो भी क्या इस तरह जान देती? पगला घोड़ा, क्यों नहीं मैं किसी का सूना बंद कर पाई? क्यों नहीं कोई मेरा सूना बंद कर पाया? पगला घोड़ा, तुम्हारी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा रहता है? एकदम शेष। बोतल भी शेष हो चुकी। चलिए, चला जाए। आप आगे बढ़ो, मैं इसे शेष करके आता हूं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये क्या? ये क्या? ये क्या? कार्तिक कंपाउंडर शेष किए बिना और शेष देखे बिना नहीं हिलता है ना? क्यों शशि बाबू? लीजिए, इस बार सब शेष। खेल खत्म। सात साल तक मोची अपने अंतर को भरे रहा। 7 साल तक। कार्तिक कंपाउंडर, 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। तुम 7 साल तक मेरे लिए जाने दो। तुम 7 साल तक मेरे लिए? अब कुछ देखने को शेष नहीं रहा। नहीं, खेल खत्म। नहीं, पगला घोड़ा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। पगला घोड़ा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। पगला घोड़ा, मैं पूरी तरह नहीं जली, मुझे चिता से उतार, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ।
बगला घोड़ा ना। जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। 7 दिन, केवल 7 दिन चाहा था, वो भी नहीं मिला। मैं भी क्या, तब क्या अभी शेष नहीं हुआ है? जिंदा रहने पर सब संभव हो सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्म बंधनै पीडितै कर्म बंधनै मृत्योर्मोक्षीयमामृता मृत्योर्मोक्षीयमामृता मृत्योर्मोक्षीयमामृता। Thank you on behalf of the Evanet Theatre Group of Atlanta. I thank you very much for coming this evening, enjoying our presentation. We're very grateful to Dr. Monteith from our school and also Dr. Joy Berry, who were co-sponsors for this show. And I'd like to have this privileged honor now to present the cast to you, those that have put in a lot of time to make this presentation possible. The set design was made by Mr. Michael Beasy. I don't know if he's here, but he is the director of the... Join us. All right. The makeup artist is Miss Usha Kadaba. The lighting effects, Prasanna Kadaba. And as a resource person, Alana Vincent from the school. Alana, are you here? The music was provided by Viva Desai. Himadri Babu is our Apurva Yadav. Shashida Arun Misra. Satu the entertainer, Satu Babu. Then Karthik, the storyteller. Pradeep Agarwal. The lady that weaved in and out, the soul, and all the beautiful ladies, Malti, Lakshmi, and Millie. The lady of the evening, Kamala Dutt.
course, the man that put in a lot of effort and without whose direction this play wouldn't be possible, our director, Prateen Desai. An admirer of the theater has asked me that I make some presentation to the crew, and I hope you will bear with me while we do that. Sripa Desai. Prakash Wadhwani. Guru Yadav. Kartik Babu. And Madame Kamala Das. Even though this is not a big bunch with a lot of heart in it, we will take the thing decided. And thank you very much. Just get a call. Thank you very much. We may give another applause for the applause for the and the rest of us are eager for you to follow us around to the cafeteria area where you'll have on the way an exhibit to look at, and then of course enjoy the gourmet evening and some refreshments.